Now, let's start with find the coefficient of x raised to r in 2 plus x raised to n minus 1 plus 2 plus x raised to n minus 2 3 plus x plus 2 plus x raised to n minus 3 3 plus x square plus dot 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 plus 3 plus x raised to n minus 1. Bolo. Anybody? How can we proceed with this sum? I just have to find the coefficient of x raised to r in 2 plus x raised to n minus 1 plus 2 plus x the whole raised to n minus 2 into 3 plus x plus 2 plus x raised to n minus 3 into 3 plus x square and so on and so forth up till 3 plus x raised to n minus 1. बोलो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? और what is the first thing that you understand from this sum? Write the given data. This is the given data. क्या करेंगे सर? What is that you understand from this? We could treat 2 plus x as a and 3 plus x as b. So Then it's ध्यान से देखो ना, जीपी में नहीं है. If I did this divided by this, what is it going to be? If I divide 2 plus x raised to n minus 2 into 3 plus x upon 2 plus x raised to n minus 1, क्या रहेगा रेशियो? 3 plus x तो ऐसे ही रहेगा and this will become 2 plus x. अब इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर लेंगे. 2 plus x raised to n minus 3 3 plus x the whole square divided by 2 plus x raised to n minus 2 into 3 plus x. क्या कर सकते हैं बताओ, इसका रेशियो क्या रहेगा? ऑब्वियसली सेम ही रहेगा. So what can I say about it? The sequence is in GP. Okay. तो अब देख के मालूम पड़ रहा है sequence is in GP. तो what can we do? सबके बीच में प्लस है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ करेंगे? GP है. सम का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा मेरे को? a इंटू r raised to n minus 1 upon r minus 1. वेरी गुड. a क्या है मेरा? 2 plus x raised to n minus 1. r तो ये है मेरे पास. So if I solve this, see this my a, 2 plus x raised to n minus 1 into, look at r, ये देखो दोनों सेम ही आए हैं. So r raised to n minus 1 upon 3 plus x upon 2 plus x minus 1. ठीक है. इसके बाद क्या कर सकते हैं? बाहर का टर्म को मैं ऐसे लिखूँगा, नॉट दैट आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. अंदर क्या हो जाएगा? इफ़ आई टेक इसका एलसीएम, if I take इसका LCM, can you tell me what will this become? If I have to take, ये n minus 1 है, n है, गलती से लिखा. बोलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 plus x raised to n minus 2 plus x raised to n upon n plus n. इसका LCM ले लेंगे, -2 plus x raised to n upon 2 plus x raised to n. अच्छा नीचे क्या बचेगा? 3 plus x minus 2 minus x 1 upon 2 plus x. चलो ऐसे लिख देंगे.
1/2+x। ठीक है, अब देखो इसको अगर इससे डिवाइड किया, ये है n, ये है 1, अगर इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा? 2 + x raised to n minus 1, और ये तो है ही पहले से, नहीं तो सी एनीथिंग बिलो द डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर। समझा सब लोग को? एनी डाउट्स हियर? अच्छा, अब ये याद रखो यार, अगर तुम लोग को इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का है, देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का है, इसके साथ दिस इज लवली, नॉट अ प्रॉब्लम। देखो ऐसा हो जाएगा, ये 2 + x raised to n minus 1 and this will become 3 + x raised to n minus 2 + x raised to n upon 2 + x raised to n minus 1। ये देखो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, this will get cancelled directly and I am left with 3 + x raised to n minus 2 + x raised to n. I have to find coefficient of x raised to r. I have to find coefficient of x raised to r. वही पूछा ना? हाँ, find the coefficient of x raised to r. So let's look at the first bracket. क्या मेरे पास a है? क्या है a? 3. क्या मेरे पास b है? What is b? x. What is n? n. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? r. So इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा बताओ? So 3 + x raised to r का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? n है, raised to n का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? n c r. 3 raised to n minus r. So can you tell me 2 + x raised to n का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? n c r 2 raised to n minus r. Has everybody understood this? अब ये कोएफिशिएंट है and this final answer would be NCR 3 raised to n minus r minus NCR 2 raised to n minus r. And this is your this is your answer because ना n का वैल्यू दिया है, ना a का वैल्यू दिया है, ना कोई वैल्यू दिया है. So this is the answer. Obviously you can solve, you can find the general form, you will get exactly the same answer. So all you had to do is in binomial, the first half of the sum is actually a geometric progression. ये है sum of GP. This is the concept that we have used in this sum, where we have solved the sum of geometric progression. And एक बार simplify हो गया. The last part of the sum is where we have used binomial theorem. Has everybody understood this? ये मेरा advanced question. Okay, so not that difficult, easy to solve. It was easy to understand as to how you're going to proceed with the sum. मुझे find out करना था coefficient of x raised to r, but without simplifying I will never find the coefficient of x raised to r. एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वेर आई हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. समझो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, बट मेरा क्वेश्चन ये है 2x minus 1/x the whole raised to 10 divide by x raised to 4. How will I find coefficient of x square? बताओ. I have to find the coefficient of x square. What should I do? बिकॉज इसके पहले हमने कोई ऐसा सम नहीं लिया है जहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है. यहाँ पे मैंने एक ही टर्म लिया डिनोमिनेटर में, x, जिसका पावर 4 है. सो यहाँ पे व्हाट कैन वी डू और व्हाट शुड वी डू? बताओ. हाउ डू वी प्रोसीड? न्यूमेरिकल विल टेक जनरल टर्म. ओके, and then find the x का power in that and then divide that by 4 minus 4 का power in. so I will get 11 terms. Are you going to divide all the 11 terms? No, general term. General term. Okay, but general term में I don't have r. So okay, let's look at that way. Let's approach the sum from a different angle. मुझे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर. क्या फाइंड आउट करना है? एक्स स्क्वायर. देखो मुझे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर. मुझे दिया है नीचे x raised to 4.
I actually have to find the coefficient of x raised to 6. Why? Because अगर यहाँ पे x raised to 6 फाइंड आउट कर दिया, x raised to 6 डिवाइड बाई x raised to 4 will become what? This is what I have to find out. Did you guys understand this? तो डिनोमिनेटर में अगर मुझे से फॉर एग्जांपल अगर मुझे x क्यूब दिया रहता था, अगर मुझे x क्यूब दिया रहता था, क्यूब, अगर x क्यूब दिया रहता था तो मुझे x रेज टू 5 निकालना पड़ता था. यहाँ पे दिया है x स्क्वायर, नीचे दिया है x रेज टू 4, मतलब आई हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? सो दिस इज हाउ यू अप्रोच दिस सम. अब सबसे पहले इफ दिस इज गिवन टू मी, मुझे पता है मेरे पास a है, मेरे पास b है, मेरे पास n है, मेरे पास r है. सो आई विल मेंशन हियर वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6. वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6. अब मुझे ये भी मालूम पड़ गया कि मुझे किसका कोएफिशिएंट निकालना है. वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6. चलो लेट्स ट्राई बाय द नॉर्मल मेथड. सबसे पहले मैंने लिख दिया टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर. ठीक है, आई जस्ट शो दिस टू यू. तो मैं लिखूंगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू माई एन इज 10 सी आर, a is 2x raised to 10 minus r into minus 1 by x raised to r. ठीक है, थोड़ा लंबा चलेगा बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस विल बिकम 10 cr, दिस विल बिकम 2 raised to 10 minus r x raised to 10 minus r minus 1 raised to r into 1 upon x raised to r. This is 10 cr 2 raised to 10 minus r minus 1 raised to r. Can I write it as x raised to 10 minus 2r? क्योंकि r will go ऊपर तो क्या हो जाएगा, x raised to r will go ऊपर क्या हो जाएगा, x raised to minus r. 10 raised to minus r है, 10 raised to minus r into minus r will become 10 raised to माइनस 2r. अच्छा, किससे कंपेयर करेंगे इसको, x रेज टू माइनस 6 की 6. तो आई विल राइट x रेज टू 6 इज इक्वल टू x रेज टू 10 माइनस 2r. देयरफॉर 2r इज इक्वल टू 4. तो r इज इक्वल टू 2. इज दिस करेक्ट? अरे यस, नो, यस. चलो r का वैल्यू होगा. अब कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. So can anyone tell me what will be the answer? It will become 10c2 2 raised to 8 minus 1 square. So 10c2 into 2 raised to 8. एक सिंपल क्वेश्चन. ये राइट है, रॉन्ग नहीं है. दिस पार्ट, does it look like anything that we have done before? Alpha beta. क्या है वो टाइप? n alpha minus m upon What is the type? आंसर नहीं चाहिए. x minus 1 by x. x raised to alpha plus minus 1 upon x raised to beta. What is the type? x raised to alpha plus minus 1 upon x raised to beta. तो यहाँ पे alpha देखो क्या है? What is alpha? 1. What is beta? 1. What is n? 10. What is r? What is m? Sorry. 6. बराबर ना. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. बट मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 6. So it's not square. m is not square. What is m going to be? It is going to be 6. And you can directly use n alpha minus m upon alpha plus beta. बच जाएगा. ये पूरा स्टेप्स बच जाएगा. एंड यू कैन डायरेक्टली गेट इट. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा से भी तुम लोग ये सम सॉल्व कर सकते हो. ओके, चलो इसका आंसर बताएंगे. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 53 in summation
m is equal to 0 up till 100 cm x minus 3 into 100 minus m 2 raised to m. बताओ क्या करेंगे? Find the coefficient of x raised to 53 in this. Tell me, how will we proceed with this sum? What do you understand by that? What do you understand by this? X minus 3 is A. A is x minus 3. Okay. So A becomes x minus 3. What is B? 2. What is N? 100. R तो दिया नहीं because 53 फाइंड करना है. तो how can I write this now? How can I write this? It will become what? X minus It will become x minus 3 plus 2 raised to what? 100. 100. Which will become what? X minus 1 x minus 1 raised raised to 100. अब बताओ how will I find coefficient? सबसे इजी पार्ट ये आ जाता है. इसमें मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 53 क्या होगा? What will be the coefficient of x raised to 53 in this? 100 minus 7 is 53. x raised to 53 क्या रहेगा? If I expand this, what is the first term? x raised to 100. What is r? 0. अच्छा चलो इसका जनरल फॉर्म बताओ. चलो टेल द जनरल फॉर्म. NCR n क्या है? 100 CR x raised to 100 minus r into minus 1 raised to r. This is TR plus 1. अब बताओ इसको किसको किससे कंपेयर करेंगे? x raised to 53 को किससे कंपेयर करेंगे? x raised to 100 minus r. तो r क्या रहेगा? What is 100 minus 53? 47. So क्या कोएफिशिएंट रहेगा? It will be 100 C47 into minus 1 raised to 47, which is minus 100 C47. Did you guys understand this? This is the coefficient of x raised to 53. This is the coefficient of x raised to 53. एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे बार बार. TR plus 1 is equal to NCR A raised to n minus R B raised to R. NCR A raised to n minus R B raised to R. NCR A raised to n minus R B raised to R. This is the general form. You have to use this for middle term. You have to find for coefficient of x. You have to find for the independent term. Any term. You have to find the coefficient of x raised to anything. NCR A raised to n minus R B raised to R. Now, ये टाइप का लास्ट सम लेते हैं हम लोग. Find the coefficient of x raised to 4 in 1 plus x raised to 4 1 plus x square raised to 5. बोलो हाउ. लास्ट टाइप है इसका. इसके बाद विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसमें मुझे निकालना है x raised to 4. How should we solve? Because there is not one bracket, there are two brackets. So one method is you'll have to expand. इसमें 5 टर्म आएगा, इसका 6 टर्म आएगा. सबको सबसे मल्टीप्लाई करो और देखो x raised to 4 कैसे मिल रहा है. And second method is where you x raised to 4 ही है ना? हाँ x raised to 4 है बराबर. Second method is दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करो. अगर मैंने दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. चलो, कैन एनीवन टेल मी 1 प्लस एक्स द होल रेज टू 4 का जनरल फॉर्म क्या रहेगा? जनरल फॉर्म बताओ क्या रहेगा? 4CR. स्मॉल r ले लेंगे. a रेज टू 4 माइनस r. नेक्स्ट इज x रेज टू स्मॉल r. मतलब दिस विल लुक लाइक दिस. 4CR x raised to small r. Anybody has any doubts? नेक्स्ट टर्म लेते हैं. नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? 1 plus x square raised to 5. गाइस
इसका जनरल फॉर्म बताओ क्या रहेगा? 5CR 5CR 1 रेज टू 5 माइनस R x squared raised to R x स्क्वायर रेज टू 5 माइनस R। बोलो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या रहेगा? raised to R 5CR x रेज टू, 10 इसको ना कैपिटल R ले लो गाइस, दोनों R कन्फ्यूजन रहेगा, तो कैपिटल R ले रहे हैं। x रेज टू 10 माइनस 2R बराबर है क्या? बोलो। x squared का कोई raised to R हुआ है x रेज टू x square raised to R होना चाहिए. x स्क्वायर रेज टू R, कहाँ पे x स्क्वायर रेज टू R? x स्क्वायर रेज टू R, अच्छा ये सेपरेट करो। नहीं सर, x square raised to R b raised to R ना, a raised to n minus R b raised to R. बी रेज, अरे हाँ सॉरी 5 माइनस R क्यों लिखा, माई मिस्टेक। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर रेज टू 2 कैपिटल R। ओके, हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? अब अगर मैंने दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन मतलब देखो मल्टीप्लाइड तो है, मतलब ये देखो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि 1 प्लस एक्स रेज टू 4 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5 को अगर मैंने साथ में लिखा, सो इट विल बिकम 4CR x रेज टू R मल्टीप्लाइड बाय 5CR x raised to 2R. So this will become 4CR into 5CR into x raised to R plus 2 into x raised to 2R. And further simplification में देखो मुझे कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, into 5 raised to R into x raised to R plus 2R. Now this is the first sum that we are doing, जहाँ पे we are coming across x raised to something plus something and x raised to something minus something. Can anyone tell me how and what are we supposed to compare? मुझे पूछा है x raised to 4. अब x raised to 4 मतलब देखो ध्यान से, इधर मैंने स्मॉल r ले लिया, इधर कैपिटल R ले लिया और इधर होना चाहिए 4, ठीक है। एंड मेरा इक्वेशन है R प्लस 2R, ये मेरा इक्वेशन है गाइस, दिस इज माई इक्वेशन। इसको एक काम करता हूँ, R प्लस 2R शुड बी इक्वल टू 4। अगर मैंने R का वैल्यू 0 लिया, अगर मैंने R का विच इज़ लेजिट, R हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर मैंने R का वैल्यू 0 लिया तो 0 प्लस 2R विल बी इक्वल टू 4। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल R? 2। सो दिस इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो मेरा पहला कंडीशन है कि आई कैन पुट R का वैल्यू 0, आई कैन कीप कैपिटल R का वैल्यू एज 2 एंड दिस विल सेटिस्फाई। अब किसी ने बोला ठीक है, लेट्स टेक R का वैल्यू एज 1। गाइस इफ आई टेक R का वैल्यू एज 1, if I take R का value as 1, small r का value as 1, can you tell me what will this become? 3/2 3 by 2, but it cannot be a fraction, तो not possible. Next small r का value क्या रहेगा? 2। अगर मैंने small r का value 2 ले लिया तो what is capital R का value? 1। Will it satisfy? Yes. Next small r का value 3, not satisfied कैपिटल R का वैल्यू 1/2. Is it possible? Not possible. And the last value of R क्या रहेगा? लास्ट वैल्यू ऑफ R 4। अगर मैंने R का वैल्यू 4 ले लिया capital is 0 तो कैपिटल R का वैल्यू क्या है? Is it possible? yes Of course yes. So these are your coefficients and my coefficients are, देखो ध्यान से, all I have to do is I have to just substitute there. So if I substitute, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं। सो फाइनली अगर मैं इससे कंबाइन करूँगा तो माई कोएफिशिएंट इज गोइंग टू बी, सबसे पहले 4C0 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 प्लस 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 5C1 प्लस 4C4 multiplied by 5C0. This is your answer. And if you want to
substitute obviously 4c0 is 1, 5c1 is 5, 4c4 is 1, 5c0 is 1. All you have to do is just find 5c2 which is going to be 10 and 4c2 is going to be 6. Just multiply this, इसको multiply करो plus this, that is going to be the coefficient, and that is going to be the coefficient. Has everybody understood this? So if I have to simplify this, ये हो जाएगा 1 times 10 plus 36 times 5 plus 1 times 1. So 10 plus 30 plus 1 कितना हो जाएगा? 41. So that is going to be the answer. Has everybody understood this? So 4c0 5c2 plus 4c2 5c1 plus 4c4 5c0. तो यहाँ पे भी पैटर्न बन रहा है, देखो एवरी सेकेंड टर्म 0 2 4 एंड यहाँ पे एवरी ऑल्टरनेट टर्म दैट इज 5c2 5c1 एंड 5c0. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? एंड द लंबा मेथड इज इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, सबको मल्टीप्लाई करो, ओनली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो जिसमें x⁴ आएगा, मतलब x⁴ को x⁴ से मल्टीप्लाई करो, x⁴ को x³ से मल्टीप्लाई करो, x² को x² से मल्टीप्लाई करो, x³ को x⁴ से मल्टीप्लाई करो, x⁴ को x⁴ से मल्टीप्लाई करो. नॉट, I would not suggest that because it will take too much of your time for one sum. So you have to be very careful कि everything, as I told you guys, everything ends on your general form. कि TR+1 is equal to सब में अगर तुम ये भी सम देखोगे, इसके पहले भी सम देखोगे, everything ends on your general term, and the general term is, what is the general term? TR+1 is equal to 11th standard. What is TR+1? NCR, a raised to n minus r multiplied by b raised to r. Very good. Good morning. Now, अब देखो, if we talk about multinomial expansion, ठीक है, a very short, a very important concept, very important concept, used heavily in permutation and combination. Okay, binomial में ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, बट PNC में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. Now say for example, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, say for example a plus b plus c the whole raised to n. Okay, if I come across this, you have two options. तीन टर्म को ना सबसे पहले फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले तीन टर्म को ना दो टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करो. तो दो टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब इट इज़ कुछ बड़ी बात नहीं. सी हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस. मैंने इसको ले लिया a प्लस बी प्लस सी द होल रेज टू n. मैंने फर्स्ट दो टर्म को एक टर्म ले लिया, एक ब्रैकेट में डाल दिया. देखो एक ब्रैकेट मतलब दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म. एंड लेट्स ट्राई टू एक्सपांड दिस. अब मेरे पास, मेरी नज़र में, जस्ट बिकॉज आई पुट अ ब्रैकेट, मेरी नज़र में दो ही टर्म है. पहला ब्रैकेट पहला टर्म प्लस के बाद दूसरा टर्म. अच्छा, कोई बताएगा पावर क्या है? n. वेरी गुड. अब मेरे पास पावर है n. अब मैं इसको करूँगा एक्सपांशन. ठीक है, चलो कोई मुझे बताएगा इसका एक्सपांशन क्या रहेगा? NCR NC0 a plus b raised to n into c raised to 0. Lovely. There's a reason we are writing this. Okay, चलो और तीन लिख लेंगे. NC1 a plus b raised to n minus 1 c raised to 1. Lovely. NC2 a plus b raised to n minus 2 into, अच्छा कोई बताएगा मुझे लास्ट टर्म इस सीक्वेंस का सबसे लास्ट टर्म कोई बताएगा क्या रहेगा? बताओ. NCN. अच्छा, c रेज टू n लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि a प्लस बी रेज टू 0. व्हाट इज a प्लस बी रेज टू 0? 1. ये मेरा सीक्वेंस हो गया. ओके, अच्छा, एनीबडी हैज एनी डाउट्स इन दिस सीक्वेंस? अच्छा, किसी को डाउट नहीं? वेरी गुड. सबसे पहला क्वेश्चन, लुक एट द फर्स्ट टर्म. ओके, माय फर्स्ट टर्म इज NC0 a plus b raised to n and c raised to 0. And look at the second term, NC1 a plus b raised to n minus 1 c raised to 1. Okay,
फर्स्ट टर्म में दिस टर्म a प्लस बी, can anyone tell me how many terms are there in the expansion of a plus b raised to n? अगर मैंने a plus b raised to n को expand किया तो मेरे पास कितना टर्म्स रहेगा? n प्लस वन. ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसके एक्सपांशन में आई हैव n प्लस वन टर्म. वेरी गुड. ठीक है, वो ब्रैकेट पे, जस्ट फोकस ऑन द ब्रैकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी रेज टू n माइनस वन में हाउ मेनी, n प्लस वन टर्म्स हैं, याद रखो ये n प्लस वन टर्म्स हैं, दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स. ये यहाँ पे लिख रहे हैं n प्लस वन टर्म्स, ये टर्म्स है. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ये सब. कैन यू टेल मी a प्लस बी द होल रेज टू n माइनस वन में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n. a plus b the whole raised to n minus 2 में how many terms are going to be there? n minus 1. हमेशा एक ज़्यादा रहता है. now a plus b the whole raised to, जो भी लास्ट टर्म है मेरा, how many terms are there? One term. are you sure? दिख नहीं रहा है मेरे को. R is 0. याद रखो a प्लस बी रेज टू ज़ीरो, मतलब पावर क्या है? ज़ीरो. और हमेशा एक ज़्यादा टर्म रहेगा, तो ज़ीरो से एक ज़्यादा क्या रहेगा? वन. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस? मैंने नंबर ऑफ टर्म्स लिखा, मैंने हर एक पहले ब्रैकेट का, बिकॉज सेकेंड तो एक ही टर्म है, दिस तो एक ही टर्म. तो c रेज टू जीरो इज वन टर्म, c1 इज ऑल्सो वन टर्म, c स्क्वायर इज वन टर्म, c क्यूब, ये सब एक ही टर्म है. प्रॉब्लम c का नहीं है, c एक अलोन टर्म है. दिस इज बायनोमियल, बायनोमियल, टू टर्म्स मेरे पास बायनोमियल थ्योरम है. यहाँ पे रहेगा n प्लस वन, यहाँ पे रहेगा n, यहाँ पे रहेगा n माइनस वन. इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया, से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट, what is it that I am getting? What is this that I am getting? What is this? ये क्या है? सम तो है, प्लस है ऑफ सम ऑफ n प्लस वन. अच्छा पीछे स्टार्ट करो ना, एपी है, नॉट बैड. पीछे स्टार्ट करो, यहाँ पे क्या है? उसका नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा? 2 का ना, उसका नेक्स्ट 3 4 5 6 अप टिल व्हाट? समेशन ऑफ व्हाट? समेशन ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस वन बाई टू. बट ये समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स नहीं है. अब मुझे बताओ, इफ हियर आई एम राइटिंग समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n इंटू n प्लस वन बाई टू. दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ताकि तुम लोग रिलेट कर सको. अब मैं क्या बोल रहा हूँ? समेशन ऑफ फर्स्ट n नहीं बोल रहा हूँ, समेशन ऑफ फर्स्ट. तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n प्लस वन टाइम्स. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, दिस इज इट. अब इसको ना मुझे थोड़ा अच्छे से लिखना है. ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर. दिस इज n प्लस वन, n प्लस टू बाई टू. नाउ लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. लेट्स एक्सपांड दिस. NCR, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. इसको अगर एक्सपांड किया तो क्या हो जाएगा? ये n प्लस टू, n प्लस वन, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल. Is it the same? Is it the same? So how can I write this? n plus 2, n plus 2, C2. Can I write it like this?
कैन आई राइट इट लाइक दिस? चलो एक और कम था, ये भी मत लिखो. कैन आई राइट इट लाइक दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज योर बेगर्स. This is your beggars, and this is the explanation कि how do we come across this. N is the number of terms. R, देखो R कितना है? N plus R minus 1 CR. We have done in PNC N minus R plus 1. देखो confusion, बहुत confusion है. R minus 1 है नीचे. The formula for beggars. This is how we approach, and this is how we get this formula. So n plus 2, obviously n plus 3 minus 1 is n plus 2. You also know this. This is the explanation as to how we come across these kind of theorems. Has everybody understood this? So that is the first thing of a multinomial expansion. But मेरे पास 2 से ज़्यादा टर्म्स हैं, मैंने 2 को एक्सपांड किया. मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये कैसे आ गया? बेसिकली दिस इज नथिंग बट n plus 2 C2. Has everybody understood this? So this is where, अब किसी ने बोला a plus b plus c plus d. Now you know कि क्या दिया है, कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स. देखो टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स. तो जैसे ही मैंने a प्लस बी द होल रेज टू n लिखा, a प्लस बी द होल रेज टू n में नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1, a प्लस बी द होल रेज टू n माइनस 1 में नंबर ऑफ टर्म्स इज n. हमेशा याद रखो जो भी मेरा पावर रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज़्यादा होगा. तो जो भी पावर है उसके पावर में प्लस 1 कर दो, तो n minus 1 plus 1 will become n. n minus 2 plus 1 will become n minus 1. नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज़्यादा रहेगा. दैट इज़ वाई a प्लस बी द होल स्क्वायर में 3 टर्म्स है, एंड a प्लस बी द होल रेज टू a प्लस बी द होल क्यूब में 4 टर्म्स है. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस और नो? चलो अब बहुत ही ईजी टॉपिक, रिमाइंडर टाइप थियरम्स, रिमाइंडर टाइप क्वेश्चंस. अब बोलेंगे कि अगर मैंने इसको डिवाइड किया, मैंने किसी को किसी से डिवाइड किया, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? सो देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग इट. विल टेक द ईजीएस्ट वे, एंड आई नो दैट यू गाइज विल ट्राई विथ अ लॉट ऑफ मेथड, और तुम लोगों को बहुत डिफरेंट आंसर आएगा. इसलिए ना स्टिक टू अ पर्टिकुलर मेथड, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू. अभी इफ़ आई टेक अ बेसिक पार्ट, से फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया x प्लस 1 द होल रेज टू n. अब देखो x प्लस 1 द होल रेज टू n विल कम c0 x रेज टू n प्लस c1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस c2 x रेज टू n माइनस 2 प्लस c3 x रेज टू n माइनस 3, एंड लास्ट में हो जाएगा cn x रेज टू 0. ओके, ये मैंने एक्सपांड किया, ये बेसिकली नॉर्मल एक्सपांशन किया. अब किसी ने मुझे बताया कि ये लास्ट टर्म है ना, व्हाट इज दिस लास्ट टर्म? कैन एनीवन टेल मी? व्हाट विल इट बिकम? 1. ये अपना दोस्त 1 बन गया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द सिमिलैरिटी फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ये टू द सेकेंड लास्ट टर्म? Is there any similarity that you can tell me from the first term to the second last term? One similarity. Is there any similarity that you can tell me from the first term to the second last term? Anything common, anything that is there in all the terms? X. चलो हम लोगों ने x कॉमन ले लिया. So this will become c0 x raised to n minus 1, c1 x raised to n minus 2, c n minus 1 x raised to 1 बराबर x raised to 0 हो जाएगा प्लस 1. अब ना ये बात याद रखो कि दिस एंटायर पार्ट, इवन इफ यू सिंप्लीफाई इट, दिस एंटायर पार्ट व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, ना ये पूरा पार्ट है ना, पूरा पार्ट, इट्स गोइंग टू बी एन इंटीजर. ये होगा इंटीजर. सबको ऐड कर लिया ना मैंने, c0 c1 c2 c3 c4. तो व्हाट वी डू इज, इतने जगह लिखने से अच्छा आई ऑलवेज राइट इट एज लैम्डा x प्लस 1. इतना कोई नहीं लिखेगा,
मैंने लिख दिया लैम्डा एक्स प्लस वन. रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन में मैंने एक्सपांड दिस, ये सबसे अलोन है तो इसका प्लस वन आ गया यहाँ पे. व्हेन आई एक्सपांड दिस, इसका एक्स कॉमन ले लिया, एज समवन सेड दैट एक्स इज कॉमन, लवली, एक्स इज कॉमन, एक्स कॉमन ले लिया. एंड आई टेक दिस एंटायर पार्ट एज वन इंटीजर. अज्यूम करते कि इसको लैम्डा ले लेते, इसको पूरे को लैम्डा ले लो, चलो इंटीजर मीन इसको लैम्डा ले लेंगे. तो आई कैन से दैट माई एंटायर एक्सपांशन इज नथिंग बट लैम्डा एक्स प्लस वन. इतना कोई नहीं लिखेगा एग्जाम में, बहुत ज़्यादा लिखने के लिए. अभी किसी ने बोला एक्स प्लस वन द होल रेज़ टू 100, कुछ नहीं कर रहे हैं. यू नो हाउ यू सपोज टू राइट, यू सपोज टू राइट लैम्डा एक्स प्लस वन. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे प्लस वन है तो यहाँ पे प्लस वन. बट अगर मेरा पावर चेंज होता है, अगर मेरा पावर चेंज होता है, से फॉर एग्जाम्पल समन सेज एक्स माइनस वन द होल रेज़ टू एन. अब इसमें आएगा, किसी ने बोला कि लैम्डा एक्स रेज़ टू एन प्लस माइनस वन रेज़ टू एन. अब मारा मारी स्टार्ट होगा. अब कोई बोलेगा नहीं, अगर इफ़ आई एम सॉल्विंग दिस, अगर ऑड है तो माइनस रुकेगा, अगर इवन है तो मेरा माइनस नहीं रुकेगा. सो वी हैव टू टेक, इसको ना स्प्लिट कर लेंगे. तो मैं लिखूंगा लैम्डा एक्स माइनस वन वेर एन इज ऑड, एंड इसको लेंगे लैम्डा एक्स प्लस वन वेर एन इज इवन. ऑब्वियसली ये सब लोगों ने क्रैक कर ही लिएगा अपने दिमाग में कि अगर मैंने n का वैल्यू 2 डाल दिया, सो ऑब्वियसली n का वैल्यू 2 डाल दिया तो ये प्लस हो जाएगा. एंड अगर n का वैल्यू 1 डाल दिया और मैंने n का वैल्यू 3 डाल दिया तो दिस विल बिकम माइनस वन क्यूब एंड माइनस वन क्यूब विल बिकम माइनस वन. सो रिमेंबर दिस. मुझे रिमाइंडर में ना 2 ही चीज़ याद रखना है. पहली चीज़, अगर कुछ नहीं बोला प्लस आ गया तो सेट है. मैं बोलूँगा कुछ भी हो जाए आई विल राइट लैम्डा एक्स प्लस वन एकदम. बट अगर बीच में माइनस आ गया तो मैं जाऊंगा पावर की तरफ. पावर बोलेगा ठीक है लैम्डा एक्स माइनस वन इफ एन इज इवन, इन एन इज ऑड, आई एम सॉरी, एंड लैम्डा एक्स प्लस वन इफ एन इज इवन. अब ये देखने में थोड़ा मज़ा आता है बट वी विल सॉल्व द सम. उसके पहले ना रिमार्क, एक्स रेज टू एन माइनस वाई रेज टू एन एंड एक्स रेज टू एन प्लस वाई रेज टू एन. ओके, इफ़ आई गिव यू दिस पार्ट, सबसे पहले इस पर बात करेंगे तुम लोग के हिसाब से. भूल जाओ मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, कॉमन सेंस क्वेश्चन. तुम्हारे हिसाब से एक्स रेज टू एन माइनस वाई रेज टू एन हमेशा किससे डिविजिबल रहेगा? एक्स रेज टू एन माइनस वाई रेज टू एन का कोई भी वैल्यू लो, कोई भी तुमको जो मन कर रहा है वो वैल्यू लो, वो हमेशा किससे डिविजिबल रहेगा? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों से डिविजिबल रहेगा. चलो एक काम करते हैं, पहले 2 लेते हैं. लेट्स टेक, यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहता हूँ. एक्स रेज टू एन माइनस वाई रेज टू एन, गाइज मैंने एन का वैल्यू डाल दिया 2, तो मुझे आंसर क्या आएगा? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. कन्फ्यूजन, मैंने 3 डाल दिया. ध्यान रखो, तुम लोग 2 डाला तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब? एक्स माइनस वाई, उसके बाद एक्स प्लस वाई नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग. ठीक है, तो दोनों में एक्स माइनस वाई आ गया. नेक्स्ट 4 लेते हैं तो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. उसमें भी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ रहा है. बट ये 3 एग्जाम्पल में व्हाट इज दैट वन थिंग दैट इज कॉमन थ्रू आउट? So I will write that x raised to n minus y raised to n is always divisible by x minus y. Did you guys understand this? X raised to n minus y raised to n is always divisible by x minus y. I repeat again. X raised to n minus y raised to n is always divisible by x minus y. चलो, on that basis can anyone tell me x raised to n plus y raised to n is always और यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल, ये ना पब्लिक लिखता नहीं है, बिलोंग्स टू नेचुरल. ठीक है, नेचुरल नंबर. ठीक है, ओके. कोई बताएगा यहाँ पे x raised to n plus y raised to n will be always divisible by what? Are you sure? ठीक है, इस पर डिस्कशन करेंगे. Is always divisible by x plus y. Is it true? I'm asking, is it true? Yes? Chalo, tell me the formula for x square plus y square.
एक्स प्लस वाई, वो तो एक्स प्लस वाई तो होल स्क्वायर होता है ना. इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? वो तो मैनिपुलेट करना पड़ता है. चलो छोड़ो, एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4. देर इज नो फॉर्मूला फॉर ए पावर प्लस बी पावर व्हेन n इज इवन. सो दिस इज ट्रू, एक्स प्लस वाई है. फॉर व्हाट कंडीशन? when n belongs to odd. ये ना प्लीज याद रखो, बिकॉज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई इंटू वॉट एवर. एक्स रेज टू 5 प्लस वाई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू वॉट एवर. एंड दिस इज हाउ यू एक्सपांड and you get that x raised to n plus y raised to n is divisible by x. याद रखना है. अब हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिए. तुमको ये याद रखना है कि x raised to n minus y raised to n is always divisible by x minus y, and x raised to n plus y raised to n is always divisible by x plus y, provided n is what? n is what? Odd. Lovely. n is odd. तो इसी बात पे एक क्वेश्चन लेते हैं. Find the remainder when 5 raised to 99 is divided by 4. ठीक है. अब 5 raised to 99 is divided by 4. Okay, let's go by the method, and I don't want to confuse you right now, but when जब booklet solving होगा तब I'll confuse you guys a lot, because I know that सब लोग बहुत अलग method से करेंगे to just to get the correct answer. I am telling you, stick to one method of your choice, but make sure that method satisfies all the condition. चलो इसे start करते हैं. अब 5 raised to 99 और 4 दिए. Okay, now सबसे पहले I will write it as 5 raised to 99 can be written as 4 plus 1 raised to 99. ठीक है. I hope everybody knows this कि 4 plus 1 5 होता है. अब मुझे बोलता है कि this is divisible. अब कुछ नहीं करना है मुझे. This will become lambda x plus 1, मतलब 4 लैम्डा प्लस 1. गाइस अगर मैंने 4 लैम्डा प्लस 1 को डिवाइड बाय 4 कर दिया, 4 लैम्डा प्लस 1, तुमको बताता हूँ करके, सॉल्व करके बताता हूँ, स्ट्रेस मत लो तुम. ये ले लिया 4 लैम्डा प्लस 1, 4 से डिवाइड कर लिया. अब 4 को किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे. चलो लैम्डा से कर लेंगे. प्लस 4 लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो गया, ये निकल गया, क्या बचा? व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. ये मेरा रिमाइंडर है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? एंड आई होप एवरीबडी नोज कि द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन व्हाट नंबर यू आर डिवाइडिंग बाय. सब लोगों को पता है ना? चलो अच्छा, गुड, एकदम डेप्थ है मैथ्स में, वेरी नाइस. सो दिस इज माई आंसर कि 5 raised to 99. आपको ये बोलेगा सर ये तो हम लोग को डायरेक्ट आ गया था. नो प्रॉब्लम. किसी ने बोला आई डिवाइड ओनली 5 बाय 4, आई गेटिंग 1. 5 स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 4 भी 1 आ गया. 5 क्यूब 125 डिवाइड बाय 4, आई वुड गो 1. नो प्रॉब्लम. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. विल कम अप विद न्यू वेज. मेक श्योर यू स्टिक टू द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मेथड. ओके, एनीबडी हैज एनी डाउट्स? सब लोग समझाइए. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड. Now, I'll take a question. अच्छा तुम लोग बताओगे 5 raised to 99 डिवाइड बाई 6, बोलो. स्टेप नंबर 1. ओ माई गॉड, मैथमेटिक्स. 6 minus 1 raised to 99. ओके, नेक्स्ट. लैम्डा. लैम्डा क्या? लैम्डा x माइनस 1. x तो है ना, क्या है? 6 है ना, तो क्या लिखूँ? 6 लैम्डा माइनस 1 डिवाइड बाई 6. क्या रिमाइंडर? -1 मत बोलो यार प्लीज़. -1 मत बोलो. कैसा -1 आएगा?
yes. मतलब कैसा, हाउ विल यू गेट रिमाइंडर एज -1 इफ इट इज़ 5⁻99? -1 के साथ है रिमाइंडर। तुम लोग कभी आया था -1 रिमाइंडर? आया था क्या? नहीं आता है, ऑब्वियसली नहीं आएगा। मैं बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स है, तुम लोग -1 आ रहा है तो प्लीज़ गाइस बोलो क्या करेंगे, हाउ विल यू प्रोसीड, बोलो। 3 + 2 5। देखो तुमको ये तो पता है कि यू हैव टू मेक श्योर दिस टर्म इज पॉजिटिव एंड लेस देन 6। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। देखो ध्यान से देखो, 6 अपना दोस्त है, दिया है, सबसे बड़ा हिंट दिया है 6 है, तो 6 है तो जश्न मनाओ। कैन आई राइट इट लाइक दिस? अरे यस नो यस। तो अगर मैंने इसको 6 ले लिया कॉमन तो क्या हो जाएगा ये लैम्डा -1 + 5 डिवाइड बाय, अब अगर मैंने इसको डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म, पूरा फर्स्ट टर्म इज एग्जैक्टली डिविजिबल ना। अगर मैंने 5 को 6 से डिवाइड किया, व्हाट इज द रिमाइंडर गोइंग टू बी? 5। दैट इज द आंसर। तो माइनस नहीं आएगा। आई होप इट्स 10 डिवाइड बाय 4। अगर कोई मुझे बोलेगा -3 तो मैं मारेगा उसको, मारना ही चाहिए, नहीं होएगा। सो दिस इज 6 लैम्डा -1 + 5। मैंने क्या किया, आई मेड श्योर दैट आई एम एडिंग अ टर्म जो कॉमन लेके निकल जाएगा। अब ये लैम्डा, ये फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया। लैम्डा -1 को फर्क कोई पूछ ही नहीं रहा, बिकॉज ये 6 तो डायरेक्टली डिविजिबल हो गया। एंड सिंस फर्स्ट पार्ट इज डिविजिबल 5, ऑब्वियसली दिस 5 इज लेस देन 6, मतलब दैट इज गोइंग टू बी माय रिमाइंडर। अगर ये 7 रहता था, अगर समझो ये 7 है, समझो, तो 7 डिवाइड बाय 6 का रिमाइंडर क्या रहेगा? वेरी गुड, चलो नाइस। ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। चलो यही क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोगों को ज़्यादा लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए। गाइस 5⁻99 डिवाइड बाय 12। ओ माय गॉड्स, नंबर्स बड़े होते हुए क्या करेंगे बताओ? 6 + 5 + 11 नहीं, बोलो 5⁻99 डिवाइड बाय 12। मेथड तो वही है। अब 5 और 12 में, अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ द सम। वेरी क्लोज, 4 + 1 हो गया, वेरी क्लोज। 6 - 1 हो गया। तो जब तक +1 - 1 था ना, लाइफ ऐसे चल रहा था। फिर अचानक मैंने बोला 12। अब यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल। सबसे पहले दिया है 5⁻99। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा जो पावर है वो ऑड है कि इवन है? ऑड है। सो वेन एवर यू हैव दिस ना, बिकॉज देखो 12 × 2 = 24, 36, 48, 60 सब इवन है। अब 5⁻99 को हम लोग थोड़ा सेपरेट करेंगे। थोड़ा सेपरेट मतलब देखो ऐसा, 5 × 5�98। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? क्या किया मैंने? सेपरेट कर दिया। क्यों किया किसी को आइडिया नहीं, आई विल टेल यू क्यों किया। (5² क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मेरे को? 49 श्योर? ओके, कोई बताएगा 5² कितना होता है? कैन यू टेल मी व्हाई डिड आई मेक इट एज 25? Is 25 close to 12? 12 It is close to a multiple of 12. It is close to a multiple of 12. तो अगर मेरे पास 25⁴ है, अब मैं खुश हो गया, मैं बोला बेस्ट। मुझे पता है कि 5² is 24, 5² is 25 and 12 × 2 is 24. So can anyone tell me how will I write this? बताओ इसको कैसे लिखेंगे? 5 × अरे बोलो 24 + 1 = 49. How can I write this? 5 times 24 लैम्डा +1 डिवाइड बाय 12। बोलो रिमाइंडर क्या है?
अच्छा 5 टाइम्स 24 लैम्डा बाई 12, ये फर्स्ट पार्ट, इज इट डायरेक्टली डिविजिबल बाई 12? तो ये निकल जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 5 डिवाइड बाई 12, 5 डिवाइड बाई 12 क्या रहेगा 5। अरे ऑब्वियसली इट इज लेस देन 12 ना, तो कैसे डिवाइड करेंगे? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? तो तुम लोग को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा मेरे को डायरेक्ट करना है, प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट का, यू विल हैव टू सेपरेट इट सो दैट यू गेट अ रिदम। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये हो गया 1 लैम्डा एक्स प्लस 1, मैंने बोला ना लैम्डा एक्स प्लस 1 देखो प्लस ही है, तो कोई बोलेगा 7 माइनस 5, फिर तुम लोग को ऐसा नहीं कि रॉन्ग आएगा, 7 माइनस 5 को वापस तुम लोग को 12 से प्लस माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस 7 करेंगे। इफ आई डू 12 माइनस 7, से फॉर एग्जाम्पल 12 माइनस 7 इज 5, अब 12 लैम्डा माइनस 7 फिर माइनस 12 प्लस समथिंग कर आएगा आंसर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा नहीं आएगा, बट यू विल गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। सो इफ समवन टेल्स मी कि नहीं आई वांट टू डू 12 minus 7, you will take 12 lambda minus 12 plus 5 by 12, सेम ही तो आ रहा है। अब ये तो फिर भी छोटा नंबर और छोटा पावर है। कल किसी ने बोलते 625 रेज टू 36 डिवाइड बाय कुछ रहेगा, कितना कितना तुम लोग मैनिपुलेट करो। सो यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट पैटर्न कि आई एम गोइंग टू स्टिक टू दिस, मेरा irrespective your method is right, your answer will always be the same। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग आंसर बताओगे। 2 raised to 2005 डिवाइड बाई 17, बोलो 2 raised to 2005 डिवाइड बाई 17। अब 2 और 17 में जमीन आसमान का फर्क है, और 2005 में कोई पैदा हुआ था 2005 में, 2006 7, अरे बाप रे 7 में हुआ था, कॉन्ग्रेट्स हैप्पी बर्थडे। बोलो क्या करेंगे, 2 raised to 2005 डिवाइड बाई 17, 2 into 2 raised to 2004, ओके रॉन्ग नहीं है, राइट है तेरा, रॉन्ग नहीं है, बोल 4 और फिर 2 raised to 4 into 5। चलो तुम लोग जो बोल रहे हो दैट इज नॉट रॉन्ग, 4 ले सकते हैं, 4 मतलब कम रहेगा, 5 क्या रहेगा, चलो 2 raised to 5 क्या रहेगा 32, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बिना हर मेथड से करेंगे, मैंने अगर 5 ले लिया तो बाहर क्या आएगा 2000, क्या 2000 के साथ है, ये राइट है, क्या हो जाएगा ये 2 raised to 5 क्या होता है गाइस, बोलो, अरे क्या बात है 32। अच्छा एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स टिल हियर? अब 32 को कैन आई राइट इट एज 17 प्लस 15 रेज टू 401? अरे यस और नो? अब देखो ना अपने आप एक छोटा टर्म भी मिल गया, एक बड़ा टर्म भी मिल गया, एक सेम टर्म भी मिल गया। अब इसको आई कैन राइट 17 लैम्डा प्लस 15 डिवाइड बाई 17, व्हाट इज द रिमाइंडर? What is the remainder? अरे बोलो 15। Any doubts? अब किसी ने बोला 2 raised to 4, राइट है, रॉन्ग नहीं है। इफ यू टेल मी कि आई विल राइट 2 into 2 raised to 4, एक 2 बाहर ले लिया तो 2 raised to 4 अगर ले लिया तो दिस विल कम 501, करेक्ट है। अब 16 विल बिकम 17 minus 1, you will do plus 17 minus 7, you will get the same answer। देखो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा, देखो 2 को बाहर ही रखो, दिस विल बिकम 16 raised to 501 which is 2 into 17 minus 1 raised to 501, 2 into 17 lambda minus 17 plus 16 divided by 17, which will become 2 into 16 by 17, which is 32 by 17, which is what 15। सेम ही आया, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। ये तुम लोग जो बोल रहे हो ना वो ये है, विच इज नॉट रॉन्ग, आई टोल्ड यू ना दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। आई एम मोर कंफर्टेबल सेइंग दैट ना इवन नहीं दिया है, ऑड दिया है, ऑड दिया है मतलब कुछ तो कर सकते हैं हम लोग, ऐसे नहीं कि हर समय कर सकते हैं,
बट 2005 दिया है, तो आई थिंक आई कैन डू बाय दिस मेथड और दिस मेथड, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड? तुमको जो मेथड से कन्वीनियंट है, बिकॉज देखो ना लास्ट में तो फिर नॉर्मल मैथ्स की 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज 32, 32 को डिवाइड बाय 17 कर दिया, मेरा रिमाइंडर इज 15. तुम लोग को रिमाइंडर चाहिए, तुम लोग क्वेश्चन कुछ नहीं चाहिए, यू नीड द रिमाइंडर. एंड मेरे दोनों इसमें माई रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 15. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? चलो एक क्वेश्चन ये वाला. 106 raised to 85 minus 85 raised to 106 plus 1 डिवाइड बाय 7. मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए फ्रेंड्स. सेम है, सेम है, तुम लोग को बिल्कुल स्ट्रेस लेने का जरूरत. इट्स द सेम. मैंने सिर्फ 2 टर्म्स को कंबाइन कर दिया, और +1 गरीब है, कोई नहीं है उसका, वो +1 ही रहेगा. तुम लोग प्लीज इस पे माथा फोड़ी नहीं करना, वो 1 ही है, वो हमेशा रहेगा. सबसे पहले टर्म को थिंक ऑफ इट एज 3 डिफरेंट टर्म्स. ठीक है, इसका रिमाइंडर तो 1 ही है. हाउ विल आई सॉल्व 106 रेज टू 85? बोलो, सबसे पहला टर्म लेता है 106 रेज टू 85. हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहे हैं? 105 + 1 डिवाइड रेज टू 85 डिवाइड बाय 7. कैसे लिखेंगे इसको? हाँ, इसके बाद क्या लिखो? 105 लैम्डा + 1 डिवाइड बाय 7. क्या रहेगा रिमाइंडर? क्या रहेगा रिमाइंडर? अरे तो डायरेक्टली डिविजिबल है ना, तो क्या रहेगा रिमाइंडर? 1. नेक्स्ट टाइम बताओ. 85 रेज टू 106. कैसे लिखेंगे इसको? 84 + 1 रेज टू 106 विच इज 84 लैम्डा + 1 डिवाइड बाय 7. क्या रहेगा रिमाइंडर? अब फाइनल 1 - 1 + 1. व्हाट इज द रिमाइंडर? पहले वाले का रिमाइंडर +1, सेकेंड वाले का भी +1 है और बीच में माइनस है, तो 1 - 1 + 1 will give you the remainder as well. Did everybody understand this? Anybody has any doubts? Now, find remainder when 2 raised to 3n + 3 minus 7n minus 2 is divided by 49. अब कुछ लेना देना ही नहीं है. 2 है, 3 है, 7 है, 2 है, 49. अब एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है कि 7 है और 49 है. हमको प्यार से निकालना है रिमाइंडर. अब बोला है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 49. कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन वी प्रोसीड विथ दीज काइंड ऑफ सम्स? बोलो, एनीबडी? बोलो फ्रेंड्स, क्योंकि 7 एंड इसमें ना, इसमें कुछ नहीं कर सकते. सेकेंड एंड थर्ड टर्म में यू कांट डू एनीथिंग ना. उनके पास पावर है. दे आर 2 टर्म्स -7 एंड -2. कुछ भी नहीं है उनके पास. देयर इज नथिंग. दे डोंट हैव पावर, तो यू कांट एक्सपांड. तो वो वैसे ही रहेंगे. अब मेरी नज़र जाते हैं यहाँ पे 2 raised to 3n + 3. अब बोलते हैं 2 raised to 3n + 3 के what is it that I can do if I have to solve 2 raised to 3n + 3? Can anyone tell me what do you understand by 2 raised to 3n + 3? बोलो, क्या कर सकते हैं? Is there anything I can do for 2 raised to 3n + 3? 8 raised to n + 1. एक मिनट, क्या बोल रहे बेटा? 2³ n + 1. चलो करते हैं. 2³ × n + 1. ठीक है, नॉट बैड. क्या हो जाएगा ये? 8 raised to n + 1. चलो एक स्टेप मैं लिख लेता हूँ. 8 raised to 1 × 8 raised to n. चलो ये भी मैंने कर दिया. इसके बाद क्या कर सकते हैं? 7 - 1. 7 - 1. 7 - 1 + 1 रहेगा ना. 8 × 1 + 7 raised to n.
इज दिस करेक्ट? कि 7 + 1 लिखो, Bigger number will be lambda. बिगर नंबर विल बी लैम्डा, तो 1 + 7 लिखो, 7 + 1 लिखो, 7. इट्स द सेम थिंग। ठीक है, चलो लिख लिया। बट लैम्डा अगर आया तो प्रॉब्लम होगा 7n और 2 का, दे डोंट हैव एनी प्लेस टू गो। तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, मैं यहाँ पे करूँगा 1 + 7 द होल रेज़ टू n। कैन एनीवन टेल मी इसका फर्स्ट 3 टर्म्स का एक्सपांशन? n c0 1 रेज़ टू 7 रेज़ टू 0, बोलो ना, प्लस 1 रेज़ टू n - 1 7 रेज़ टू 1 प्लस 1 रेज़ टू n - 2 7 स्क्वायर, और ये चलता रहेगा टिल एंड, चलता रहेगा। गाइस इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1। नेक्स्ट टर्म 7n प्लस N into n minus 49 इंटू NC2, ये 7 स्क्वायर है। कोई बताएगा इसका नेक्स्ट टर्म में 7 का पावर क्या रहेगा? क्यूब। नेक्स्ट टर्म में 7 रेज़ टू, मतलब मुझे ये समझ गया कि यहाँ से लास्ट तक इट विल बी डिविजिबल बाय 49। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज उसमें 49 आएगा। कैसे आएगा? 7 स्क्वायर में 49 आएगा, यस। 7 क्यूब में 49 आएगा, 7 रेज़ टू 4 में 49 आएगा, 100% आएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सब वैल्यू टिल nth वैल्यू इट विल बी डिविजिबल बाय 49। तो मुझे ये समझिए कि इतने बड़े एक्सपेंशन में मेरा काम का सिर्फ फर्स्ट सेकेंड, एक्चुअली थर्ड भी देखो ना, यहाँ पे थर्ड से ना एवरीथिंग इज डिविजिबल। सो इफ यू डोंट राइट दिस ऑल्सो दैट्स फाइन, इफ यू डोंट राइट दिस ऑल्सो दैट्स फाइन। ये तो लिख दिया हम लोगों ने डिविजिबल 49। अब देखो बचा क्या? अब बचा है मेरे पास इसके जगह, एंड इसके जगह ना लास्ट में इसके जगह आई विल राइट 1 + 7n minus 7 -7n - 2, बराबर है ना? 1 + 7 वही ना, 1 + 7n 7n - 2, बोलो बराबर है ना? कुछ मिसिंग तो नहीं है? ध्यान से देखो, ये देखो इसके आगे क्या है? 8 है। सो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने चुपके से डाल दिया 8। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा, देखो यहाँ पे इफ़ आई एक्सपांड दिस विल बिकम 8 + 56n - 7n - 2 विच विल बिकम 6 + 49n। अभी अगर इसको मैंने 49 से डिवाइड किया, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रिमाइंडर गोइंग टू बी? माय रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 6। दैट्स इट। सो आई नो कि माय रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 6, और कुछ भी नहीं करना है। दिस इज हाउ वी प्रोसीड विद दिस काइंड ऑफ सम्स व्हेन आई नो दैट 8 + 5 56n - 7n - 2 6 + 49n, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। बिकॉज ये जो 49 है ना, इट इज़ डिविजिबल बाय n। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो जस्ट बिकॉज 2 है, इसके पास पावर है, एंड 2 क्यूब इज 8, एंड 8 को आई कैन ऑलवेज स्प्लिट विथ 1 + 7। जस्ट बिकॉज 49 दिया ना, 49 मतलब यू नो दैट 7 सबसे बड़ा मल्टीपल रहेगा, बिकॉज 7 स्क्वायर ऑनवर्ड्स इन दी एक्सपांशन ऑल दी टर्म्स, ये पूरा जो टर्म्स है ना, इट इज़ गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 49। ये जो सर्कल किया है ये भी डिविजिबल है बाय 49। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? अरे ये सोनू, चलो ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग एवरीबॉडी। नाउ दिस इज़ होमवर्क। ये तुमको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 10 है कि नहीं। या तो ये डिविजिबल बाय 10 है, ये ट्रू है, या तो डिविजिबल बाय 10 नहीं है, तो फॉल्स है। सो दिस इज़ द सम वेर यू हैव टू चेक। एक बार चेक कर लेंगे कि 11 रेज़ टू n - 10n - 1 विल बी डिविजिबल बाय 10 और नो। आई वुड एडवाइस यू जस्ट फॉलो द सेम पैटर्न। यहाँ पे हम लोगों ने 2 रेज़ टू n + 3 जो लिखा था, सेम वे यहाँ पे तुमको सिर्फ चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 10 है कि नहीं है। अगर 10 है तो ऑब्वियसली तुमको समझ जाएगा कि मेरा रिमाइंडर क्या रहेगा।
अगर नहीं है तो you'll get a particular remainder. See, whenever a term is directly divisible, मेरा रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा? 0. Has everybody understood this? चलो, we'll stop for the day.